Student, today we will discuss revaluation account. Concept of revaluation account, chapter admission of partners. So revaluation account is the nominal account. It is nominal account. Then what is the concept of nominal account? You have studied in class 11. Nominal account, all the losses and expenses are debit and all the incomes and gain are credit. The rules of nominal account is all the expenses and losses are debit and all the incomes and gain are credit. So the nature of revaluation account is the nominal. What is the concept of this account? On the credit side of revaluation account, increase in the value of assets, increase in the value of assets, यानी एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्रेडिट में आएगा. सेकंड, डिक्रीज in liabilities या in the value of liabilities, क्रेडिट साइड में आएगा. थर्ड, बाय अनरिकॉर्डेड assets, and the opposite of these three you will write on the debit side of revaluation account. First, to decrease in the value of assets. Second, increase in the value of liabilities, increase in value of liabilities. And third, unrecorded liability. This is the concept of revaluation account. If the value of the asset will increase, there will be profit. So you will write on the credit side of revaluation account. And decrease in the value of the liability. अगर liabilities की value decrease करता है, जैसे for example कि हमको क्रेडिटर का पेमेंट 25,000 का करना था लेकिन अब हमको 23,000 का करना है, तो 2,000 से क्रेडिटर डिक्रीज हो गया, यानी पेमेंट नहीं करना है, तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, तो क्रेडिट में आएगा. या अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई भी एसेट बिजनेस इंटरप्राइजेस के बुक में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो उससे हमारे एसेट साइड का टोटल क्या होगा? इंक्रीज करेगा, नहीं एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्नीचर था 20,000 का, अब उसकी वैल्यू हो गई 15,000. 5,000 से फर्नीचर की वैल्यू क्या हुआ? डिक्रीज किया. तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर यू विल राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज इट इज अ लॉस. नेक्स्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगा तो क्या होगा? फॉर्म को लॉस लगेगा, डेबिट में आएगा. और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, कोई लाइबिलिटीज हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया और अब रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटीज का टोटल क्या होगा? इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज कहाँ आ गया? डेबिट साइड में. डिफरेंस, अगर क्रेडिट एक्सीड करता है देन डिफरेंस विल कम ऑन डेबिट साइड. So you will write profit transfer to capital account in their profit sharing ratio. If the debit side will exceed, then difference will come on the credit side. So you will write here by loss transfer to capital account in their profit sharing ratio. Now see the question number 47 on the basis of this concept. So in question either you have to pass the journal entry or prepare the revaluation account. क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए या एंट्री पास करने के लिए. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद अकाउंट से एंट्री कैसे पास करते हैं. सो सी द क्वेश्चन नंबर 47. सी द क्वेश्चन नंबर 47. पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. फर्स्ट इज गिवन लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 2 lakh. So this is the given the transaction. Now see the solution of this transaction. See the first transaction.
transaction is given, land and building is undervalued by 2 lakh. It means the value of land and building is recorded in the balance sheet less than 2 lakh. यानी 2 लाख रुपये से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम करके रिकॉर्ड किया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, तो वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की इंक्रीज करेगा, तो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन एसेट्स किधर आएगा, क्रेडिट साइड में. तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज 2 लाख. सेकेंड, stock is overvalued by 20% and book value of the stock is given 60,000. Book value is given 60,000. Any this amount is mentioned in the balance sheet. और इसको कितने परसेंट से इंक्रीज करके देखा है, 20%. सपोज the original value of the stock was 100% plus 20% increase. देन 120% पे इसने रिकॉर्ड किया है एसेट्स को, स्टॉक को. तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 120, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, 0 0 कैंसिल, 12 5 जा, यानी 50,000 was the original value of the stock. देखिए हमने इसको एसेट्स में कितने में रिकॉर्ड किया, 60,000 से, तो 10,000 से हमारा स्टॉक की वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज कर गया. तो टू स्टॉक डिक्रीज इन एसेट्स, यू विल राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू स्टॉक 10,000. नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन नंबर 3, provision to be made for compensation of rupees 20,000 to an ex-employee. तो जब भी हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे तो उससे हमारा प्रोविज़न अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा. तो रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी, बिकॉज ऑल द प्रिजर्व्स एंड प्रोविज़न आर दी लायबिलिटीज. तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज मीन्स लॉस. इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन. अमाउंट इज गिवन 20,000. नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स अपीयर्ड इन द बुक एट रुपीज 1,50,000. दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 1,30,000. क्वेश्चन कर रहा है कि 1,50,000 डेटर्स बैलेंस शीट में मेंशन है, लेकिन अब उस कस्टमर से 1,30,000 से ज़्यादा रिसीव नहीं होगा, यानी 20,000 से हमारा डेटर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज इन लायबिलिटीज, तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज किधर आएगा, डेबिट साइड. क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, या टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. अमाउंट 20,000. Next point, creditor include rupees 10,000 received as commission. करा क्रेडिटर में 10,000 कमीशन का रिसीव था, इसका मतलब 10,000 का पेमेंट नहीं करना है. देन अमाउंट ऑफ द क्रेडिटर विल डिक्रीज बाय 10,000. इट मीन्स डिक्रीज इन द लायबिलिटी. तो डिक्रीज इन लायबिलिटी मीन्स क्या, प्रॉफिट. यू विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड. तो बाई क्रेडिटर 10,000. Next, a bill of exchange of rupees 40,000, which is discounted from the bank, but now it is dishonored on 31st March 2018, but no entry has been passed either made in book. So what entry you will pass in case of dishonor of bill? Customer debit any debtors debit to bank account. There is no revaluation account in this entry. It means this transaction will not be recorded in revaluation account. इस एंट्री में कहीं भी रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन को रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है. ये हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया, मीन्स 40,000 रुपीज़ हमको मिल गए. अब बिल डिसऑनर हो गया तो हमने बैंक को इमीडिएट 40,000 पे कर दिया. तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस.
तो प्रॉफिट या लॉस है ही नहीं है इस ट्रांजेक्शन में, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेटर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डिक्रीज टू 1,20,000 एंड बुक वैल्यू इज गिवन 2 लाख। मशीनरी की बुक वैल्यू दिया हुआ कितना, 2 लाख। अब कह रहा है कि ये डिक्रीज होके कितना हो गया, 1,20,000। डिक्रीज 2 लिखा है, डिक्रीज 2। इस केस में हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 2 लाख से डिक्रीज होके कितना हो गया, 120, यानी कितना डिक्रीज किया, फाइंड द डिफरेंस, 80,000। तो डिक्रीज इन एसेट्स हुआ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी मीन्स डिक्रीज इन एसेट। तो यू विल राइट ऑन डेबिट साइड टू मशीनरी 80,000। बेटा एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर डिक्रीज 2 लिखा है तो डिफरेंस फाइंड करेंगे, और डिक्रीज बाय लिखा है तो सेम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। सी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय 1,20,000 एंड बुक वैल्यू इज गिवन 2 लाख। इन दिस ट्रांजेक्शन देयर इज मेंशन decrease in the value of machinery by 1,20,000. By is mentioned there. So same amount you will write to machinery account 1,20,000. Last transaction, expenses on revaluation amount to ₹8,000 had been paid by partner X. अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होगी, जैसे हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और पेमेंट कर रहे हैं कैश में तो टू कैश या टू बैंक, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्सपेंसेस इज द लॉस, तो यू विल राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन व्हाट, अगर बैंक से पेमेंट हो रहा है या कैश में पेमेंट हो रहा है तो टू बैंक लिखेंगे, और कौन पेमेंट कर रहा है, पार्टनर पेमेंट कर रहा है, तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इज गिवन 8,000। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 47। इफ it is mentioned in question that you have to prepare the revaluation account. So in this way you will prepare the revaluation account. Now see the concept of journal entry. Suppose you have to pass the journal entry. तो account से entry कैसे pass करेंगे? See the first point. To listen the concept. Revaluation account के डेबिट साइड में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे स्टॉक रिवैल्यूएशन के किस साइड में, डेबिट में, इसका मतलब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया। किसको डेबिट किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, यानी स्टॉक की साइड में, डेबिट साइड में, किसके डेबिट में, रिवैल्यूएशन की। इट मीन्स हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था और स्टॉक को क्या किया होगा, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। जैसे फर्स्ट था, ये ट्रांजेक्शन फर्स्ट था, आप ट्रांजेक्शन बुक से देखेंगे, पहला ट्रांजेक्शन था लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 2 लाख, ये है फर्स्ट ट्रांजेक्शन। इसकी एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग को आपने रिकॉर्ड किया किधर, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, इसका मतलब इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू revaluation account. This is the first entry, 2 lakh. Next transaction, ये सेकंड। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में स्टॉक लिखा है, इट मींस रिवैल्यूएशन क्या हो गया, डेबिट। एंट्री क्या हो गई, सेकंड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, अमाउंट 10,000। थर्ड, ये ट्रांजेक्शन रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, अकाउंट।
अमाउंट 20,000, तो हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में है, इसके लिए रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे और इसको डेबिट करेंगे। और जितने भी आइटम्स आपने रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है, इसके लिए हम रिवैल्यूएशन डेबिट टू ये, जैसे इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, इसकी रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और इसकी एंट्री क्या होगी, ये डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट, यानी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, फ्रॉम अकाउंट यू विल पास द जर्नल एंट्री। तो आपको ये लर्न हमेशा याद रखना है, यू हैव टू लर्न इफ द items are recorded on the credit side of revaluation account, it means the revaluation account has been credited. And if the transactions items are recorded on the debit side of revaluation account, it means revaluation account is debited. That's all.